Hello. Good morning, FI BCom. Good morning. Okay. Shall we start? Good morning. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. Yes, So yesterday, our rural-urban divide, that question was over. Today, I am going to discuss the new questions that tribals in India. Tribals in India. Can you hear my voice properly, all of you? Can you hear my voice properly, all of you? Yes, ma'am. Okay. yes, ma'am. Okay. Tribals in India. That we will start. The government recognizes one of the group of the people in India as tribals. It means that they belong to one of the 744 tribes mentioned in the constitution. That tribes means particular group of the people which are seen in the society, and government recognizes that particular group and give them name as a tribes. Okay, so out of, so one of them 744 tribes are seen in India as according to Indian constitution. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Now we will see the characteristics of tribes. That which are the so what is the position or what is the life of the tribes? That first point is isolated life. The Indian tribal are cut off from the rest of the civilization. They live in the remote forests and hilly areas. So as we live, okay, normal people, that different caste, different religion, live together in the society. But this particular group, tribes, they do not live in the society. They are cut off from the civilization, and they live in the hilly areas. We can see them in the hilly areas. Have you heard the name like or the term like Adivasis? Adivasis. Have you heard the name or have you heard the term Adivasis? Yes or no? Yes or Yes, no? ma'am. हाँ, Yes, जो ma'am. आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइब्स किसको बताया जाता है? तो ट्राइब्स होता है कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है कि जो हमारे साथ नहीं रहते, हमारे साथ सोसाइटी में नहीं रहते. वी कांट एक्सेप्ट देम और वी डोंट एक्सेप्ट देम. Okay, if they want to shift in our society, but though the other people, they are not going to accept them because their traditions are different, their culture is different, their outlook is also different. Okay, so most probably we see the tribal means Adivasi people in the hilly area. Okay, the next point is distinct dialects. Distinct dialects. Dialects means related to language, related to culture. Okay, that the tribals have their own language to communicate with one another. The western tribes speak Hindi, the central tribes speak Dravidian language, and the eastern tribes speak Austro-Aztec language. Okay, we already discussed the Austro-Aztec language, Dravidian language, and all languages. There are 22 languages are spoken, most probably spoken, and they are given the particular importance in the constitution. Now the tribal people, where they are seen, that they are also divided into the different parts of the India. So they are seen in the western side also, western hilly area also, then central hilly area also, and eastern hilly area also. So whenever the tribe people, okay, whenever the tribal people live in the western, they speak Hindi, and the central people speak Dravidian language, and the eastern tribal people speak Austri-Asti language. Do you understand this point properly? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं. आगे देखिए यहाँ पे
worship of natural forces. Okay, that in our Hindu religions there are so many gods and goddesses. In Muslim they believe in one God. Okay, the Sikh people, Punjabi people, they believe in Guru Nanak. Okay, so the same way the tribal people worship natural forces because they totally depend on the nature. Do you understand? They totally depend on the nature, and they are animist. They are animist. They believe in the spirit, regulate their lives. Okay, means most probably they are connected. आपका हो किसका ऑडियो ऑन है? आपका हो जाए तो मुझे बताएं, मैं रुकती हूँ। यहाँ पे। हो गया? ठीक है? Okay, so the tribal people most probably they believe in the natural forces. They believe or they are totally depend on the nature, so they worship the nature. Okay, they worship the nature. जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में हम सबको पता है, जो हिंदू है सबको पता है कि हम पेड़ पौधों की या कुछ पेड़ पौधों की पूजा वगैरह करते हैं। ये पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल मराठी में जब हम बोलते हैं उसको वटपौर्णिमा. ओके, तो वटपौर्णिमेला आपण वडाच्या झाडाची पूजा करतो. ओके, सो दे ऑल्सो वर्शिप द नेचर, that they believe in the spiritual regulate their lives. They believe that the miracles occur and the spiritual occurs, that our life is also related to the spirituality, but we don't believe it. Okay, they are highly superstitious. Okay, so most probably they are highly superstitious. The next point is different racial stocks. Racial means race. Racial means race, related to the caste. In most of the tribes belong to three races. These are Mongoloids, Negroids and Australoids. ये आपको नाम याद रखना है. कौन से नाम है वहाँ पे? 3 कास्ट कौन सा दिखाई देता है ट्राइबल पीपल में? Mongolids, Yes, Negroids and Australoids. Australoid. ऑस्ट्रेलिया. सो ये आपको नाम याद रखना है. ओके, आगे देखते हैं सोशल रिलेशनशिप. द मेंबर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स टेंड टू बी एथनिकली distinct. Okay, means they are very rigid people. Okay, ethnic beliefs are strong. Further, the tribes constitute endogamous group. Okay, then the tribes also have the endogamous group. Endogamous means only they if they are going to marry, they marry within their own community. They are not going to marry outside of their community. It is called endogamous group. समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया? हम रिपीट कीजिए ना फिर से. ओके, यहाँ पे क्या बताया है उनका रिलेशनशिप. जैसे हमने अर्बन रूरल डिवाइडेशन देखा या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, तो वहाँ पे हम यहाँ पे हमको ट्राइबल पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. तो उसमें सोशल रिलेशन में वो तो एक अलग एरिया में रहते हैं, हिली एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं. ओके, एंडोगेमियस में उनका जो ग्रुप होता है, अगर उनको उनके ग्रुप में किसी को भी शादी करना है तो वो सिर्फ अपने ही कास्ट के लोगों से या अपने ही कास्ट के लोगों से शादी कर सकते हैं. कि जैसे अभी का जो रिसेंट टाइम चल रहा है या पूर्वे से ये चल रहा है कि अगले से ये चल रहा है कि हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, क्रिश्चियन लड़की है, पंजाबी, ऐसा आउटसाइड वो शादी नहीं कर सकते. तो उसको हम बोलते हैं शादी नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोगेमियस ग्रुप. सो दे आर एंडोगेमियस ग्रुप. दे मैरी विद इन देयर ओन कम्युनिटी. वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों से ही शादी कर सकते हैं.
अपने कम्युनिटी की लड़की और लड़के से ही शादी कर सकते हैं और कम्युनिटी की लड़की और लड़के से शादी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. डायवर्सिटी Yes. ऑफ इंडिया એટલે આ તો એટલે હોય જ બધેને બીએસસી ને કે એવી જે સાઈડ હે ને वरुण, religion of tribals. Most tribals regard themselves as Hindus. Okay, that 5.5% of them declare their religion as Christianity, 0.3% Buddhism, 0.2% Islam, and 5% other religion. The tribal people also have divided their community in different religions, just like Hindu, Christianity, Buddhism, Islam, and other religion. So do you understand this point? They are very simple points. Do you Yes, understand? ma'am. Okay, if you don't understand, Yes, then tell me. I will repeat again. Okay, the next point is unsettled mode of living. Okay, unsettled means they are not settled down people. We are settled down, na? We are settled down. Yes or no? We are settled down, na? Yes, ma'am. Our home is in a particular area, that our Yes, ma'am. is particular society. So we are called organized and settled down people. Okay, the tribal peoples are nomads. Nomads means जो भटके हुए होते हैं, भटके हुए मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, उनका कोई फिक्स ऐसा पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता कि प्लेस नहीं होता कि वो वहीं पे रुकने वाले हैं, जो हर बार अपनी जगह बदलते रहते, उसको हम क्या बोलते हैं? नोमाड्स. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द एरिया. जो एरिया होता है, जिस एरिया में वो रहते हैं, तो वही एरिया में अपनी सोसाइटी में नहीं आएंगे, अपने सिविलाइजेशन में वो नहीं आएंगे, लेकिन वो हिली एरिया में ही अपना जो बोलते हैं ना घर, वो बदलते रहते हैं. तो डू यू अंडरस्टैंड? उसको हम बोलते हैं नोमाड्स. Yes, ma'am. Okay. The next point is Yes, ma'am. size of tribal groups. The tribal groups vary in the size greatly. Some tribals have few members, other million. The smallest tribe is Andamanese and it has merely 19 members. The Gond and the Bhil are the major tribes. Each has the million of members. Okay. तो ट्राइबल्स पीपल में हमने 3 कैटेगरी देखी. वो कौन सी थी? वो 3 कैटेगरी कौन सी थी? रिमाइंड कराइए मुझे जरा, मुझे तो याद नहीं है. कौन से थे? हमने अभी देखा कौन से थे? 3 कैटेगरी कौन सा था? Mongoloids, मंगोलॉइड्स, फिर Negroids, निग्रोटीज और Ostracized. ऑस्ट्रोलॉइड्स. ओके, Astrolite. ऑस्ट्रोलॉइड्स. थोड़ा सा नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जिसका प्रैक्टिस हो जाएगा उतना नाम जल्दी जुबान पे आ जाएगा. ओके, तो जितना हमने क्या बोला, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स. ओके, एंड दे हैव द दे आर ग्रेटली इन द ग्रुप. ओके, तो कभी कभी ऐसा दिखा देता है कि जो स्मॉलेस्ट जो ट्राइबल ग्रुप है, तो हम जैसे अंडमान और निकोबार ये आइलैंड की बात करते हैं ना, तो वो वहाँ पे रुके हुए, तो उनको नाम क्या दिया गया? अंडमानीज. क्या नाम दिया गया? अंडमानीज. क्या नाम दिया गया? Andamanese. ओके. Andamanese. हाँ, और उनका नंबर कितना है ये आप याद रखेंगे. छोटे छोटे पॉइंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं, ट्रू फॉल्स में आते हैं, वो पूछा जाएगा, वो आपको बुक में से ही मिलेगा. 19 है. ओके, तो गोंड एंड बिल आर ऑल्सो द ट्राइब्स. गोंड एंड बिल आर ऑल्सो द ट्राइब्स. बिल, आपने बिल पीपल का नाम सुना है? गोंड पीपल ऐसा कुछ नाम सुना है क्या? नहीं मैम. नहीं, ये नहीं. ट्राइबल पीपल है. मीन्स वो नेचर से कनेक्ट है, तो उनके हम बोलते हैं ना कि नेचर से कनेक्ट होते हैं. तो जैसे आदि मानव, ओके, आदि मानव जो शिकार वगैरह करते थे, वैसे ही थोड़ा सा उनका लाइफ वैसा ही होता है. शरीर पे थोड़े कपड़े कम होते हैं. और ये जो बिल जाती है उनको दिखाई देती है, बिल ट्राइब्स. तो वो हमें गुजरात के जो गिरनार जो जंगल है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा सौराष्ट्र गुजरात जो ये पर्टिकुलर हम बोलते हैं
स्टेट है तो वहाँ पे हमको राज्य है तो वहाँ पे दिखाई देती है, छोटे छोटे बोलते हैं शहर है वहाँ पे हमको दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? राज्य नहीं Yes, शहर में ma'am. दिखाई देता है। ओके Yes, एंड ma'am. यस मैम। अपना घर का आवाज है ना, आप जो भी बोल रहे हैं ना सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। आप जितना उत्तर दे वही यहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो घर का आवाज है तो कहीं पे डिस्टर्ब हो रहा है तो आप अलग जाके बैठिए, कहीं कोने में जाके बैठिए कि जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, नहीं तो पूरा घर का आवाज रिकॉर्ड हो जाएगा। आपने डेमो देखा है पहला लेक्चर में। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइबल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 46 of Indian Constitution, the state has the special responsibility of promoting educational and economic interest of the tribal। कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से जो आर्टिकल 46 है उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए कुछ एक्ट बनाए हैं कि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए उनको एजुकेशन देना चाहिए कि वो पिछड़ी हुई जाति में या फॉर एग्जांपल वो हिली एरिया में रहते हैं तो अभी वो हिली एरिया में रहते हैं तो जैसे हमारे जैसे सिविलाइज होंगे क्या? सिविलाइज हो सकते हैं? नहीं सिविलाइज हो हो सकते। सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। उनका एजुकेशन लेवल कम होता है, पॉवर्टी ज़्यादा दिखाई देती है। तो कुछ जैसे मैंने अभी बोला ट्राइबल पीपल, तो ट्राइबल पीपल जो भील जाति के जिसके बारे में मैंने पढ़ा है तो वो उसका मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पीपल हैं तो ज़्यादातर शिकार करते हैं और शिकार करके अपना जीवन बिताते हैं। कि फॉर एग्जांपल या छोटा मोटा बड़ा थोड़ा सा दुकान होता है शहर में से कहीं, और जैसे मैंने आपको बोला कि गुजरात के कुछ गुजरात राज्य हैं वहाँ पे जो छोटे छोटे शहर है सौराष्ट्र बड़ा शहर है लेकिन उसमें गिरनार वगैरह जो है तो उस शहर में छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पे हमको ये हिली एरिया में दिखाई देते हैं। तो उनका जो इसमें भी 3 प्रकार होते हैं कि जो शिकार करके अपना जीवन बिताते हैं। दूसरा जो कास्ट का होता है बिल कास्ट का, वो कैसे होते हैं उनको ऐसा थोड़ा छोटा बड़ा दुकान होता है, शहर में से थोड़ा सा सामान लाते हैं फिर वो हिल एरिया में बेचते हैं। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं कि आई थिंक मुझे अभी याद नहीं है लेकिन जब याद आएगा तो मैं आपको कल परसों जरूर बता दूंगी कि इसको पर्टिकुलर आपको मीन्स इनको नाम दिया गया है। मामा उसको बोलते हैं कि भिल मामा, और जो उसकी पत्नी होती है उसको मामी बोला जाता है। तो वो उनका मान सम्मान होता है क्योंकि वो हिली एरिया में ही दिखाई देते हैं। कि जैसे हम बोले ना अफ्रीकन्स वगैरह कैसे होते हैं, अफ्रीकन्स लोग बड़े साइज में बड़े काले वाले, तो ऐसा कुछ उनका लुक होता है। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके द इंडियन गवर्नमेंट पब्लिशेस द शेड्यूल्स ऑफ द ट्राइब्स। तो उसको क्या नाम दिया गया है? शेड्यूल ट्राइब्स नाम दिया गया है। रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिस्ट। ओके तो शेड्यूल कास्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए उस बेसिस पे उनको ये पर्टिकुलर प्रोविज़न बनाया गया है, उनके लिए पर्टिकुलर कायदा बनाया गया है कि जिसको शेड्यूल ट्राइब्स नाम बताया गया है। ओके आपको अभी भी ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ। मराठी फिल्म थी डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, शायद आपने देखी हो। देखी है कभी ये फिल्म? Yes, हाँ ma'am. मैम। देखिए। हाँ Yes. तो उसमें जो पीपल बताए हैं तो ट्राइबल पीपल बताए हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा आपने वो शायद वो जो सीन देखा होगा तो उसमें वो ट्राइबल पीपल बताए हैं। तो ये इस प्रकार के ट्राइबल पीपल वेस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ Yes, जाओ। ma'am. ओके Yes, ma'am. यहीं पे आपका यूनिट नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 1 खत्म होता है। यहाँ पे आपका मॉड्यूल नंबर 1 यूनिट नंबर 1 खत्म होता है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे कि कोई पॉइंट समझा नहीं है? नो मैम। सब कुछ No, समझ ma'am, में नहीं है। रहे? ओके नोट्स निकाल Yes, रहे हैं ना? मैम। जब भी मिलेंगे हाँ, तो मैम, मैं निकाल आपका रहे। नोट, जब भी आप मिलेंगे मुझे मैं नोट्स चेक करने वाली हूँ। जब भी मिलेंगे आप मुझे तो मैं नोट्स चेक करने वाली हूँ। ओके Okay, ma'am. तो नोट्स अपना Okay,
रेडी रखें। ओके, आज हम दूसरा यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट। स्लाइड दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. दिखाई दे रही ओके, है। Yes, ma'am. यूनिट नंबर 2, सेमेस्टर फर्स्ट FC। यहाँ पे देखिए, जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है जेंडर डिस्पेरिटी। नाम लिखिए, अपने बुक में नाम लिखिए, पॉइंट लिखिए, जेंडर डिस्पेरिटी पार्ट 1। क्योंकि जेंडर डिस्पेरिटी 2 पार्ट है, यूनिट नंबर 2 में भी आता है, यूनिट नंबर 3 में भी आता है, और उसमें भी डिवाइडेशन है ABC। तो आपको कम से कम 15 चैप्टर है शायद आपके लिए। नाम लिखा, जेंडर डिस्पेरिटी, यूनिट नंबर 2। Yes, ma'am. ओके, उसका पर्टिकुलर जो हम पार्ट 1 ABC वाला, तो ए में उसका टाइटल है इनइक्वालिटी। नाम लिखिए, इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। लिखा, नाम लिखा, पॉइंट लिखा। Yes, ma'am. आज से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जेंडर डिस्पेरिटी पार्ट 1, इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़े? Yes, आगे ma'am. बढ़े क्या? ओके, ये देखिए, सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या, कंसेप्ट क्या, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। सोशल इनइक्वालिटी refers to the situation in which the groups in such a group not have an equal status. The difference between men and women, upper class, lower class, caste in Indian society are the example of social inequality. Social inequality is the universal phenomenon. It is present in all the spheres. Okay, so inequality, equality मतलब क्या? इक्वालिटी मतलब क्या? सेम। सेम। उसको मराठी में क्या बोलते हैं? क्या समानता। समानता। और इनइक्वालिटी मतलब मराठी में उसको क्या बोलते हैं? भेदभाव। भेदभाव, असमानता। ओके, असमानता। तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको? इक्वालिटी मीन्स एक जैसा, और इनइक्वालिटी मीन्स भिन्न भिन्न हमको दिखाई देता है, एक जैसा नहीं होता है। तो हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी दिखाई देती है? हमारी इंडियन सोसाइटी में इक्वालिटी दिखाई देती है? नो मैम, नहीं, इक्वालिटी नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्या, कहाँ पे डिफरेंस दिखाई देता है? कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है? कास्ट सिस्टम। कास्ट से लेके, क्लास से लेके, और मैन एंड वीमेन लैंग्वेज में भी डिफरेंस दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैन एंड वीमेन, यहाँ पे पर्टिकुलर 3 पॉइंट दिया गया है, मैन एंड वीमेन, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड कास्ट, डिफरेंट कास्ट, जैसे हमने आगे पढ़ा, जैसे रिलीजन। ओके, तो इसकी वजह से दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। और ये सभी जगह होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, सब जगह ये होता है, पूरी दुनिया में डिफ्रेंसिएशन दिखाई देता है, सोशल इनइक्वालिटी दिखाई देती है कि हर एक सोसाइटी में अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ओके, तो ऐसा स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इनइक्वालिटी हमको दिखाई देता है। अभी आगे देखेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द सिस्टम बाय विच the rank categories of the people in hierarchy of the position. People in this layer enjoy the power and prestige, but those in the bottom strategies, they do not
enjoy. In the stratified society, the members of particular layer have the similar power and prestige. The Indian caste is the good example of it. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमको कहाँ पे दिखा देता है? अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास दिखाई देते हैं कि नहीं सोसाइटी में? Yes, दिखाई ma'am. देता है ना? दिखाई दिखाई देता है ना? ओके, द पर्सन हु हैज द पावर, ओके, द अदर पर्सन बो डाउन टू देम. एम आई राइट? कहीं पे भी, कौन सी भी फील्ड में हो. एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट Yes, और ma'am. रॉन्ग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसके पास Right, पावर, right. जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उसके सामने लोग झुकते हैं और उसको झुकवाते हैं. एम आई राइट? और जो दूसरे Yes, कास्ट ma'am. के हैं, जो लोअर कास्ट के हैं, जो बॉटम लाइन में आते हैं, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास सत्ता नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कैसा होता है? पुअर होता है. वो कैसा होता है? निर्बल होता है. उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो इंडियन सोसाइटी है, तो ये इंडियन सोसाइटी कास्ट की हिसाब से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक गुड एग्जाम्पल है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे नेता, एम आई राइट? जब लोग चुनाव में आते हैं, चुनाव के पहले उनकी पोजीशन क्या थी वो भूल जाते हैं. अगर पैसा, पावर, लग्जरी आ जाता है तो हमारे पुराने दिन हमको भूलना चाहिए. हमारे पुराने दिन हमको नहीं. भूलने चाहिए, नहीं भूलने चाहिए. नहीं. लेकिन क्या होता है, नो मैम. वो एक नशा चढ़ जाता है पैसे का, जिसकी वजह से उसको लगता है, इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया अभी उसकी मुट्ठी में है. तो उसकी वजह से क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दूसरे लोगों को कैसे ट्रीटमेंट देता है? वो कैसे ट्रीटमेंट देता है? बुरी ट्रीटमेंट देता है ना. अच्छा काम Yes, करेंगे ma'am. तो अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा होगा. लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता हम सबको. सब कुछ हो जाने के बाद समझ में आता है. सब कुछ हो जाने के बाद हमको ये सब कुछ बात समझ में आती है. आगे देखते हैं, देखिए. ओके, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. तो 4 फॉर्म्स है स्ट्रेटिफिकेशन के, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, कि सोसाइटी किस हिस्सों में बटी हुई है. तो पहला है स्लेवरी सिस्टम, ओके. दूसरा है एस्टेट सिस्टम. तीसरा है कास्ट सिस्टम एंड चौथा है क्लास सिस्टम. ये पॉइंट समझ में आते हैं? स्लेवरी सिस्टम, यू आर फैमिलियर दिस वर्ड्स, एम आई राइट ना? यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड्स, एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? मैं आपसे बात कर रही हूँ. मैं मैम फिर से एक बार बोलिए ना, समझ में नहीं आया. जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे मैंने अभी बोला, आपको कंसेप्ट बताया. स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या, उसका आपका कंसेप्ट बता. तो वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है. स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स गुलामगिरी, स्लेवरी सिस्टम. एस्टेट सिस्टम, प्रॉपर्टी. तीसरा है कास्ट सिस्टम, कास्ट के हिसाब से. और चौथा है क्लास, क्लास में स्टेटस के हिसाब से. अभी ये पॉइंट समझ में आए? आपको हाँ, मैम. हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए पहले से देखते हैं. स्लेवरी सिस्टम मतलब क्या? इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी. It is an extreme form of inequality. In this system, some individuals are owned by others as their property. The basic of slavery always economic. In the modern times, the country in which slavery prevailed in the 20th century was Saudi Arabia, as recently as the early 1960s. Okay, slavery system कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो दूसरों को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. सब मिक्सअप नहीं होना चाहिए Yes, यहाँ ma'am. पे. ये पॉइंट जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो कुछ भी लिखेंगे तो मैं मार्क्स देने वाली नहीं. आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है तो उसके हिसाब से सोचिए और अपने हिसाब से एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना जरूरी है. तो यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है सऊदी अरेबिया में. Saudi Arabia, it is the richest country, okay, but still the slavery system prevailed till
20th century in Saudi Arabia और start that 1960s से start हुआ था. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो जमींदार होते हैं, एम आई राइट, जमींदार वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं, फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड. तो फार्मर्स का जो हम बोलते हैं किसान की जो जमीन होती है उसके हाथ में होती है, एम आई राइट, उसके जगह पे वो कब्जा जमा लेता है, उसके जमीन पे वो हक जमाता है. कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी किसान ने उसके पास से पैसे लिए हैं, हाँ, हार्वेस्टिंग के लिए कि सोइंग के लिए, बी बोने के लिए, तो जब वो पैसा नहीं चुका पाता तो वो लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, जमींदार क्या करते हैं उनका, उसकी जमीन पे अपना हक बताते हैं. हाँ, उसके जमीन पे अपना हक बताते हैं, उसकी जमीन अपने नाम करवा लेते हैं. तो दिस काइंड ऑफ इज कॉल्ड स्लेवरी सिस्टम. समझ में आया? स्लेवरी Yes, सिस्टम. ma'am. Yes, ma'am. आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं. ये देखिए, द estate system. The system is synonymous with the feudalism, and the feudal estate were made up of the clergy, nobility and commoners. ये आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखिए. This system is synonymous with the feudalism. feudalism मतलब क्या? feudalism मतलब क्या? फ्यूडलिज्म मतलब क्या? समझ में आया? आपको पता है फ्यूडलिज्म? नहीं मैम. ओके, मैं आपको बताती हूँ. द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेलिंग इन द यूरोप फ्रॉम 9th to about 15th century, having its basis relation of lord of vassals with all the land held in the free, and the chief characteristics of is homage and the service of tenants under the arms in the court, and worship and forfeiture. So यहाँ पे ऐसा बताया है, the social system that existed in the Europe in the Middle Ages, in which people worked and fought for nobles, and who gave them protection and use of the land in the return. ओके, तो यहाँ पे ऐसा बताया कि फ्यूडल मतलब क्या, कि जो लोग इसमें क्या, ये जो सिस्टम है फ्यूडलिज्म सिस्टम, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यूरोप से स्टार्ट हुआ था. यूरोप में स्टार्ट हुआ था, मिडल एज में स्टार्ट हुआ था. 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक ये फ्यूडलिज्म को वहाँ पे दिखाई देता था. फिर वहाँ पे लोग किसके लिए लड़ते थे? तो वहाँ पे लोग नोबल्स मीन्स उनको न्याय मिल सके उनके लिए लड़ते थे. अगर कहीं पे भी अन्याय होता है तो हम अपनी खुद के लिए, न्याय के लिए जरूर लड़ेंगे. तो उसके हिसाब से क्या होता था? दे आर एंड प्रोटेक्ट हु गिव देम प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ द लैंड इन द रिटर्न. कि जो उनको प्रोटेक्ट करते थे, जो न्याय के लिए लड़ते थे और जो उनको प्रोटेक्ट करते थे, और उनका जो जमीन का जो हिस्सा था वो इस्तेमाल किया जाता था, उसको हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं. समझ में आया कि नहीं आया? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आया? हाँ, यस मैम. ओके, आगे Yes, देखते हैं. मेड ऑफ क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स. अभी क्लर्जी मतलब क्या, नोबिलिटी मतलब क्या, और कॉमनर्स मतलब क्या, उसका हम मीनिंग देखने वाले हैं. यहाँ पे देखिए, आगे पॉइंट आपको दिखाई देते हैं. क्लर्जी कंसिस्टेड प्रीस्टहुड. प्रीस्ट जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं ना, प्रीस्ट जो क्रिश्चियन में होते हैं, प्रीस्ट होते हैं कि नहीं? जो हिंदू में क्या होता है? पुजारी होता है. मुस्लिम में कौन होता है? कौन होता है मुस्लिम में? पूजा पाठ कराने वाले कौन होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? मौलाना बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Those who are here, those who are listening, क्या बोलते हैं उनको? नहीं पता मैम. क्या बोलते हैं? Clergy means consisted of priesthood. Its function was to look after the spiritually well-being. Means लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा spirituality में अवेक करना. तो वो किसका काम होता है? क्लर्जी का काम होता है. Then nobility. Nobility means क्या? The nobility consisted of the lords.
landlords. Okay, this person had given the fiefs by the other king, by the king or the king. Their function was to provide military protection. Nobility का मतलब क्या होता है? They consisted lords, means उसको जमींदारों में उनकी कंसिडरेशन होता है. तो ये जो लोग होते हैं उनको राजा की ओर से उनको जमीन वगैरह कुछ या भेंट दी जाती है, तो जिसकी उनका काम क्या होता है कि मिलिट्री प्रोटेक्शन देना, लोगों को उनकी रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना. जो क्लर्जी होता है उनका काम होता है लोगों को स्पिरिचुअली अवेक करना, ओके, वेलबींग करना. जो नोबिलिटी होते हैं, नोबिलिटी मीन्स दैट कंसिस्टेड ऑफ लॉर्ड्स, जमींदार में आते हैं, उनको राजा की ओर से जमीन गिफ्ट में दी जाती है या वगैरह कुछ दिया जाता है. उनका काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, मिलिट्री प्रोटेक्शन देना. समझ में आ रहे पॉइंट्स? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड all of you? Do you understand all of you? Okay, and the commoners were the producers of the material goods. This group include peasants, serfs, artisans and lord servants. तो commoners means क्या? common people. तो commoners में क्या आते हैं? peasants, serfs and artisans. peasants. तो आर्टिसंस में जो कलाकार होते हैं उनका वो कॉमनर्स में आते हैं. फिर लॉर्ड सर्वेंट्स मीन्स जो जमींदार के वहाँ पे काम करते हैं सर्वेंट की तरह, तो वो कॉमनर्स में आते हैं. अभी पीसेंट का अर्थ मालूम है आपको? पीसेंट का अर्थ मालूम है? पीसेंट्स मीन्स पुअर फार्मर. पीसेंट्स में पुअर फार्मर, ये याद रखिए. और जो सर्व्स है उनका मतलब मालूम है? सर्व्स है उनका मतलब मालूम है? नो मैम. The person who belong to lower social class, it is called serfs. The person who belong to lower social class, it is called serfs. Okay, तो अभी समझ में आया कॉमनर्स में कौन कौन आते हैं? कॉमनर्स में peasant means poor farmers, serf means the person who belong to lower social class, they are called serfs. Then artisans, जो कलाकार होते हैं तो उसको हम बोलते हैं artisans. And lord servants. ओके, तो यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी दिखाई गई है. जो पहला फॉर्म है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? पहला हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट कौन सा था? कौन सी सिस्टम थी? पहला पॉइंट कौन सा था? सिल्वर सिस्टम. स्लेवरी सिस्टम. दूसरा पॉइंट अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? दूसरा पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टेट सिस्टम. स्टेट सिस्टम में आपको क्या बताया गया है? कौन से 3 प्रकार के स्टेट सिस्टम होते हैं यहाँ पे? उसके टाइप्स कितने यहाँ पे? 3. हाँ, विचार दे. क्लर्जी, नोबिलिटी